بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معزز احباب، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو BPS 17 کے لیے ہونے والا ٹیسٹ جو 6 جون 2023 کو حال ہی میں منعقد ہوا ہے۔ اس ٹیسٹ کی آپ یہاں پہ یہ کاپی جو ہے نا وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹیسٹ پہ بات کریں گے۔ اس 100 نمبر پہ مشتمل یہ ٹیسٹ تھا، جس میں 40 MCQs سبجیکٹ بیس تھے، یعنی اردو کے تھے، اور 10 MCQs انگریزی کے تھے۔ اس میں ہر MCQs کے 2 نمبر ہیں، اور غلط جواب کی صورت میں 0.5 یعنی کہ آدھا نمبر جو ہے نا وہ ڈیڈکٹ ہونا تھا۔ تو یہ کچھ جو ہے نا وہ ابتدائی انسٹرکشنز تھی۔ اس کے بعد اب ہم ٹیسٹ پہ آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال تھا کہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا چاند آ گیا۔ اس جملے میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے آپشنز دی ہوئی تھی: تشبیہ، استعارہ، کنایہ یا مجاز مرسل۔ تو درست جواب ہے استعارہ۔ دوسرا سوال اس میں دیا گیا تھا کہ تحلیل نفسی کے بنیاد گزار کون ہیں؟ تو جو 4 آپشنز دی گئی ہیں وہ ہیں مارکس، ہیگل، فرائیڈ یا لانجائنس۔ تو اس کا درست جواب جو ہے نا وہ فرائیڈ ہے۔ تیسرا سوال پوچھا گیا تھا کہ کلام میں کسی لفظ کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے اسی قبیل کے الفاظ کا مزید ذکر کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ تو مثالیں اس کی دی ہیں: حسن تعلیل، میرات النظیر، لف و نشر یا تجنیس تام۔ تو اس کا درست جواب ہے میرات النظیر۔ اچھا جی، اگلا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کس صنف کا ہر شعر مطلع ہوتا ہے؟ اس میں آپشنز ہیں مثنوی، قصیدہ، غزل یا رباعی۔ تو اس کا درست جواب ہے مثنوی، کیونکہ اس کے ہر شعر میں قافیہ ردیف مختلف ہوتا ہے، تو اس کا ہر شعر مطلع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 انہوں نے پوچھا گیا ہے، اس میں مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ غواصی کی تخلیق ہے۔ باقی آپشنز میں رستمی، نصرتی اور سراج اورنگ آبادی انہوں نے آپشنز دی ہوئی تھی۔ چھٹا جو ہے سوال کہ کس ناول میں بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کرنے پہ زور دیا گیا ہے؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے 4 ناول انہوں نے دیے ہوئے تھے: ابن الوقت، میرات العروس، توبۃ النسوء یا ایامہ۔ تو یہ آخری آپشن ایامہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے آغا حشر کاشمیری کو شیکسپیئر ہند کا لقب کس ڈرامے کی مقبولیت پر ملا؟ تو یہ ڈرامہ ہے اسیر حرص۔ اس ڈرامے پہ جو ہے نا انہیں شیکسپیئر ہند کا لقب دیا گیا۔ اگلا سوال ہے فیض کے پہلے شعری مجموعے نقش فریادی کا مقدمہ کس نے لکھا؟ تو اس کا مقدمہ معروف نظم گو نون میم راشد صاحب نے لکھا۔ اگلا سوال ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے کلام کو کس نے سوکیانہ کہا؟ 4 آپشنز اس میں دی گئی ہیں: حالی، محمد حسین آزاد، شیفتہ یا کلیم الدین احمد۔ تو یہ مصطفیٰ خان شیفتہ نے کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ درست جواب یہ ہے۔ 10واں سوال ہے مثنوی سحر البیان کے قصے کو نثر میں کس نے نثر بے نظیر کے نام سے پیش کیا؟ تو اس کی درست جواب ہے میر بہادر علی حسینی، فورٹ ولیم کالج سے یہ ہوا۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کی آپشنز انہوں نے دی ہوئی تھی: مصرع طرح، مطلع، حسن مطلع یا زمین۔ تو درست جواب زمین ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ آب حیات میں شاعری کے کتنے ادوار بتائے گئے ہیں، یا شاعری کو کتنے ادوار میں منقسم کیا گیا ہے؟ 3، 4، 5 یا 6۔ تو اس کا درست جواب ہے 5۔ اختر حسین رائے پوری کس تنقیدی نظریے کے نقاد تھے؟ 13واں سوال یہ ہے۔ اس میں آپشنز ہیں ترقی پسند، جمالیات، جدیدیت یا نفسیات۔ تو درست جواب ہے ترقی پسند، یا مارکسی دبستان سے تعلق رکھتے تھے یہ۔
14वां सवाल है, मंटो और हसन अस्करी ने मिलकर लाहौर से कौन सा रसाला जारी किया? तो ये रसाला था उर्दू अदब, पहली ही ऑप्शन उर्दू अदब की है इसमें, तो यही दुरुस्त ऑप्शन है। 15वां सवाल है, उर्दू अदब की तारीख इब्तदा। अगला सवाल है कि आब हयात का माखज़ हाफिज़ महमूद शरानी किस तस्करे को करार देते हैं? तो यहाँ 4 तस्करे ऑप्शंस में दिए हैं, इसका दुरुस्त जवाब है मजमुआ नग़ज़। सवाल नंबर 17 है कि इकबाल के सनाए बदाए, ये एक किताब है, तो ये किसकी तहकीक है? नज़ीर अहमद, खलीक अहमद, सैयद अहमद या इनाम अहमद? तो इसका दुरुस्त जवाब है नज़ीर अहमद। अगला सवाल है कि इसमें चुगताई का कौन सा खाका उर्दू अदब के बेहतरीन खाकों में शुमार होता है? तो ये इनका खाका इन्होंने दिए हुए हैं 4 खाके आगे। चेहरे, गंजे फरिश्ते, दोज़खी या नाम देव माली। तो ये दोज़खी नाम का खाका है जो इन्होंने अपने भाई का खाका लिखा था। 19वां सवाल है कि मीर तकी मीर ने निकातुश शोरा किस सन में मुकम्मल की? और आगे ऑप्शंस दिए गए हैं 1751, 1951, 1651। तो ये जवाब दुरुस्त है 1751। नावल बस्ती किसकी तख्लीक है? नावल बस्ती किसकी तख्लीक है? तो ये इंतज़ार हुसैन की तख्लीक है। अगला सवाल है कि अनारकली किसका मारूफ ड्रामा है? आगे 4 ड्रामा नगार ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब इम्तियाज़ अली ताज है। अगला सवाल है कि दीवाने गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ? 5 बार, 6 बार, 2 बार या 1 बार भी नहीं? तो इसका दुरुस्त जवाब है 5 बार। 23वां सवाल इसमें दिया गया है कि मिरातुल उरूस जो नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, ये किस सन में शाया हुआ? तो सिनीन आगे दिए हुए हैं 1868, 1869, 1859 या 1885। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1869, 1869। कुरातुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कारे जहाँ दराज है किस सिन्फ से मुतल्लिक है? तो ये इनकी खुदनविश्त है इसकी सिन्फ जो है ना। कुलियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज से पहली बार मीर की वफ़ात के कितने अरसे बाद शाया हुए? तो ये इसकी ऑप्शन इन्होंने दी हुई हैं 1 साल बाद, 7 माह बाद, 1 माह बाद या 1.5 साल बाद। तो ये दुरुस्त ऑप्शन जो है ना वो तकरीबन कुछ 6-7 माह बाद है। तो मेरे ख्याल में ये बी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, 1 साल बाद नहीं 7 माह बाद। खलीक अंजुम ने सर सैयद की किस मारकतुल आरा किताब की तदवीन मतन की? तो ये असारुस सनादीद जो है ना इसकी इन्होंने तदवीन की थी। गालिब को नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क का खिताब किस किताब के लिखने पर मिला? तो महरे नीम रोज़ लिखने पर ये खताबात उन्हें मिले थे। ये मुगलिया ख़ानदान की तारीख़ है जो उन्होंने लिखी थी। कलाम में बातनी कैफियत और लतीफ़ जज्बात को बयान करना शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो यहाँ जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें दुरुस्त जवाब बनता है दाखिलियत। उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? शिबली, आज़ाद, खुर्शीद इस्लाम या शमसुर रहमान फ़ारूकी? तो ये अल्लामा शिबली नुमानी हैं जिन्होंने मवाज़ना निसोदबीर जिनकी तसनीफ़ थी। तो तकाबली तनकीद की बुनियाद इन्होंने डाली। प्रेमचंद के अफसाना ज़ेवर का डिब्बा का मरकज़ी किरदार जो है ना इन्होंने पूछा है कौन सा है? चंद्र प्रकाश, चंपा, ठाकुर या देवेंद्र नाथ? तो ये 3-4 ऑप्शंस है, दुरुस्त जवाब है चंद्र प्रकाश। किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को ज़रूरी तगय्युर के साथ उर्दू में अपना लेना इस्तिलाह में क्या कहलाता है? तो इसको हम तारीद कहते हैं। अगला है कि जिस फ़ेल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जाएं उसे क्या कहते हैं? तो वो फ़ेल मुज़ारे होता है। अगला है 33वां सवाल, किताबी शक्ल में शाया होने से पहले महमूद निज़ामी के सफ़रनामे नज़रनामा जो है ना उनका सफ़रनामा मारूफ, ये किस रसाले में शाया होता रहा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है नई तहरीरें, रसाला नई तहरीरें, डी ऑप्शन थी ये। जिस नस्ल में वज़न हो मगर काफ़िया ना हो उसे क्या कहा जाता है? 34वां सवाल है
नसर आरी, नसर मुसज्जा, नसर मुरस्सा या नसर मुरज्जज़। तो ये डी ऑप्शन दुरुस्त है, नसर मुरज्जज़। सवाल नंबर 35 है कि इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, किसका कौल है? ये सर अब्दुल कादर का कौल है। कलाम में ज़ाहरी हुस्न जमाल और महबूब के खद्दो खाल बयान करने को शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो इसको शेरी इस्तिलाह में दाखिलियत, खारजियत, कनूतियत या रजाइयत, तो ये खारजियत के ज़ुमरे में आता है। अगला सवाल है कि हासिल रुबाई का कौन सा मिसरा होता है? तो रुबाई का ये जो चौथा मिसरा होता है यानी आखिरी मिसरा, ये हासिल रुबाई इसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि तमहीदिया कसीदे में सबसे पहले कौन सा फ़नी अंसर लाया जाता है? तो ये तशबीब है इसका दुरुस्त जवाब। पीर किना की तरकीब का मफ़हूम क्या है? ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो ये हज़रत पीर हरम के लिए, पीर मगां के लिए, हज़रत याकूब के लिए या हज़रत यूसुफ़ के लिए। तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ये तरकीब इस्तेमाल होती है। और 40वां और आखिरी उर्दू जो MCQs है इसमें वो है कि टीप का शेर किसे कहते हैं? टीप का शेर किसे कहते हैं? नज़म का पहला शेर, नज़म का आखिरी शेर, नज़म का सबसे दिल आवेज़ शेर या नज़म का हर बंद में दोहराए जाने वाला शेर। तो ये आखिरी ऑप्शन यानी डी, नज़म के हर बंद में बार बार दोहराया जाने वाला जो शेर है उसको हम टीप का मिसरा कहते हैं। तो ये 40 MCQs इसमें उर्दू ज़ुबान के दिए गए थे, जो हर MCQ के 2 नंबर थे। तो इस तरह से ये 80 नंबर पर मुश्तमिल जो है ना, ये सब्जेक्ट बेस हिस्सा था। बाकी इसमें जो 10 MCQs हैं वो जनरल नॉलेज पे मुश्तमिल हैं। जैसा कि पहला सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1947। ये था 30 सितंबर 1947 इसका दुरुस्त जवाब है। और इसके बाद पूछा गया है कि दुनिया का सबसे लॉन्गर रिवर कौन सा है? वो अमेज़न रिवर है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट्स? किस कंट्री को कहा जाता है? तो ये फ़लस्तीन है इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल पूछा गया है कि सिंध की जो फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका क्या नाम है? तो ये मोहनजोदाड़ो है जो सिंध की आर्कियोलॉजिकल साइट है। अच्छा जी, अगला सवाल नंबर 45। ये पूछा गया है कि किसने जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं ओलंपिक्स में? तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। जी, इसका दुरुस्त जवाब है माइकल फ़िलिप्स। अगला सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका दुरुस्त जवाब है सेल। अच्छा जी, अगला इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा है कि विच फेमस म्यूजिशियन इज़ नोन एज द शहनशाह कव्वाली इन पाकिस्तान? तो इसका दुरुस्त जवाब है नुसरत फ़तेह अली ख़ान। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया इन अफ्रीका? तो इसका दुरुस्त जवाब है अल्जीरिया। अगला सवाल इन्होंने 49वां सवाल पूछा है कि विच कंट्री हैज़ विन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल? तो ये ब्राज़ील है जिसने सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है ना ये एज़ाज़ अपने नाम किया है। इसके बाद जो आखिरी सवाल है विच कंट्री इज़ होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड? तो इसका दुरुस्त जवाब है नेपाल। तो ये इस तरह से ये 50 सवालात, 10 जनरल नॉलेज और 40 उर्दू के जो है ना वो सवालात पे मुश्तमिल ये टेस्ट था जो हाल ही में हुआ है 17 ग्रेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट के लिए। कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि इसमें जो सवालात आए हैं उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, कुछ के दुरुस्त जवाब जानना चाह रहे थे, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। इसी तरह के सवालात जो है ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में भी पूछे जाते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो दाखिले
کے امتحانات ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے، تو ان میں بھی کچھ اسی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک کویشچن بینک جو ہے نا وہ طالب علموں کو بنا لینا چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ سوالات اس طرح کے جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں. جن بھی لوگوں نے یہ ٹیسٹ دیا ہے انہیں آل دی بیسٹ رزلٹ کے لیے. باقی نئے طالب علموں کو جو کہیں پہ بھی اس طرح کا امتحان دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. بے حد شکریہ.